عثمان بزدار کا استعفی منظور۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے استعفے کی منظوری پر دستخط کر دیے۔ کابینہ تحلیل پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا، جس میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، تب بھی عمران خان ڈاکوؤں سے ہار نہیں مانے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں، میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں۔ مہنگائی کے باوجود عوام عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ صادق آباد تھانہ احمد پور لمحہ ماچھی گوٹ کے علاقے میں افسوسناک واقعہ۔ ملازمت سے نکالے جانے پر عامر زبیری نامی فیکٹری مینیجر کا انتہائی قدم۔ فیکٹری مینیجر نے 2 افسران کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس نے فیکٹری کو سیل کر دیا۔ جیکب آباد کے نواحی گاؤں واحد بخش ٹالانی میں دوہرے قتل کی واردات۔ مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ذوالفقار علی نامی شہری اور اس کی اہلیہ کو قتل کر دیا۔ ملزم کی عدم گرفتاری پر لواحقین سراپا احتجاج بن گئے۔ ننکانہ صاحب میں تھانہ بڑا گھر پولیس کی کامیاب کارروائی۔ ڈکیتی کے دوران خاتون سے زیادتی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کے خلاف قبضے سے نقدی، موبائل فون اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ شجاع آباد کے علاقے بستی شوالہ میں ظلم کی انتہا۔ درندہ صفت شخص نے محبوبہ کے ساتھ مل کر اپنی 3 سالہ بیٹی کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ بچی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ قصور تھانہ بی ڈویژن کے علاقے چوک کموا میں جوتے بنانے والے کارخانے میں آتش زدگی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال قصور منتقل کر دیا گیا۔ اور اوکاڑا میں اساتذہ اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج۔ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی گئی۔ صدر ٹیچر یونین حفصہ ظفر کا اساتذہ کو مستقل کرنے اور تنخواہوں کی ادائیگیوں کا مطالبہ۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہراؤ آفاق احمد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ صادق آباد تھانہ احمد پور لمحہ ماچھی گوٹ کے علاقے میں افسوسناک واقعہ۔ ملازمت سے نکالے جانے پر عامر زبیری نامی فیکٹری مینیجر کا انتہائی قدم۔ سابق مینیجر نے میٹنگ کے دوران سینئر افسران پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 سینئر مینیجر جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا، جس کے بعد ملزم نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ افسوسناک واقعہ میں ملزم سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ پولیس نے فیکٹری کو سیل کر کے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ جیکب آباد کے نواحی گاؤں واحد بخش ٹالانی میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ذوالفقار علی نامی شہری اور اس کی اہلیہ کو قتل کر دیا۔ ملزمان کی عدم گرفتاری پر لواحقین سراپا احتجاج بن گئے۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ ملزمان با اثر ہیں، جس کی وجہ سے پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی۔ اعلیٰ حکام انصاف فراہم کریں۔
حبیب آباد سے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ جیکپ آباد کے نواحی گاؤں واحد بخش ٹالانی میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ذوالفقار علی نامی شہری اور اس کی اہلیہ کو قتل کر دیا ہے۔ شجاع آباد کے علاقے بستی شوالہ میں ظلم کی انتہا۔ درندہ صفت شخص نے محبوبہ کے ساتھ مل کر اپنی 3 سالہ بیٹی کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ بچی کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق گلشیر نامی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، جس پر محبوبہ نے کمسن بچی کو قتل کرنے کی شرط رکھی۔ دونوں نے مل کر کمسن بچی کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے شدید زخمی کر دیا۔ بچی کی چیخو پکار پر اہل علاقہ نے جمع ہو کر دونوں ملزمان کو پکڑ کر خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ متاثرہ بچی کو اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ قصور تھانہ بی ڈویژن کے علاقے چوک کمبا میں جوتے بنانے والے کارخانے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال قصور منتقل کر دیا گیا۔ اوکاڑا میں اساتذہ اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج بن گئی۔ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ آئے روز اساتذہ کی تذلیل کی جاتی ہے۔ صدر ٹیچرز یونین حفصہ ظفر لکھوی نے لکھا کہ 25 سال فرائض سر انجام دینے کے باوجود ہمیں مستقل نہیں کیا جا رہا۔ ہمیں کبھی وفاق اور کبھی صوبوں کے متحد کر دیا جاتا ہے، جبکہ گزشتہ 1 سال سے تنخواہ بھی نہیں دی جا رہی، جو کہ مہنگائی کے اس دور میں ہمارے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے۔ چونیا میں تھانہ صدر پولیس کی کامیاب کارروائی۔ ناظر علی نامی اشتہاری سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں یاسر اور شاہد شامل، جبکہ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او عابد محمود کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ علاقے سے جرائم کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں خواتین مرد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ سوات، بابوزئی، قبل سمیت دیگر اضلاع و تحصیلوں میں خواتین کی کثیر تعداد نے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر پہنچی ہیں۔ ضلع سوات میں 5,06,039 ووٹر نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ضلع سوات میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 14,07,948 ہے، جس میں 6,23,727 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ تحصیل بابوزئی میں ٹرن آؤٹ 37.78، بریک آؤٹ میں 33.98، قبل میں 31، تحصیل مٹا میں 37، بحرین میں 39.12، خوازہ کھیلا میں 36.27، چارباغ میں 40.68% رہا۔ ننکانہ صاحب میں تھانہ بڑا گھر پولیس کی کامیاب کارروائی۔ ڈکیتی کے دوران خاتون سے زیادتی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے نقدی، موبائل فون اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی سرکل بڑا گھر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کا سرگنا 70 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم نے حالیہ دنوں میں ڈکیتی اور چوری کی 20 وارداتیں کی۔ ملزم فیصل آباد اور ننکانہ صاحب سمیت مختلف اضلاع کے تھانوں کو 47 مقدمات میں بھی مطلوب تھا۔ گرفتار ملزم سے 14 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان مسروقہ برآمد ہوا ہے۔ کراچی کے علاقے شاہ عبداللطیف ٹاؤن میں عرفان نامی شہری کے قتل کا معاملہ۔ ملزم کی عدم گرفتاری پر لواحقین سراپا احتجاج بن گئے۔ دیکھتے ہیں راجہ بلوچ کی رپورٹ۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن کے رہائشی مبینہ قتل ہونے والے محمد عرفان آرائیں کے قاتل 2 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی گرفتار نہ ہو سکے۔ مقتول کے ورثہ عبدالرشید، نسرین خاتون، ساجد علی و دیگر نے ملیر پریس کلب کراچی پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر ورثہ نے صحافیوں کو بتایا کہ 2 ماہ قبل محمد عرفان کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، لیکن شاہ لطیف ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس
कातलों को गिरफ्तार न कर सकी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इरफान रिक्शा चलाकर बच्चों का गुजर सफर करता था, जिसको 2 माह कबल मुल्जमान इफ्तिखार उर्फ बाबू और मोहम्मद हुसैन ने शाह लतीफ टाउन में बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। उन्होंने कहा कि कातिल फोन करके और सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए हमें धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम थानों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। उन्होंने आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची और डीआईजी ईस्ट से अपील की कि कातिलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। बसूरत दीगर कराची पुलिस चीफ के ऑफिस के सामने खुद को आग लगाकर खुदकुशी करेंगे। कैमरामैन मुमताज चाडियो के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। गैम्बर में रेलवे फाटक अमला की गफलत के बायस लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। रेलवे फाटक पर अमला ना होने के बायस हादसे का खदशा बढ़ गया। अहले इलाका रेलवे से नोटिस लेते हुए फौरी इकदाम करने का मुतालबा कर दिया है। डेरा गाजी खान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन सरापाए एहतजाज बन के नेशनल लेबर फेडरेशन और ऑल पाकिस्तान बल्दियाती वर्कर्स यूनियन का धरना। मिर्जा मोहम्मद ईसा ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज किया जाएगा। आज का ये हमारा पुरअमन एहतजाज वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ है और हमारे मुस्तकिल मुलाजमीन को जून 2021 से 25% अलाउंस मंजूर हुआ है, वो आज तक नहीं दिया गया। कम अज कम तनख्वाह डेली वेजेस की 20,300 रुपया मुकर्रर है, वो भी आज तक नहीं दी गई। और हम ये बार बार हमने अफसरान बाला को तक ये बात पहुँचाई है, लेकिन वो टस समझ नहीं हुए। हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमें ये तमाम हमारे मुतालबात 25% अलाउंस नहीं दिया जाएगा और कम अज कम तनख्वाह का ऐलान नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे। आज हम यहाँ पे पुरअमन एहतजाज करके बैठे हुए हैं। हमारे मुलाजमीन को 25% अलाउंस नहीं दिया जा रहा, जो कि जून 2021 से गवर्नमेंट ने दिया है। और इसी तरह से डेली वेजेस मुलाजमीन की जो तनख्वाह है वो कम अज कम 20,200 रुपए है, वो भी अदा नहीं की जा रही। हम ये मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, जब तक हमें ये नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक हम यहाँ पे काम छोड़कर पुरअमन एहतजाज के तौर पे बैठे हुए हैं। सारे मुलाजमीन मसाइल 20,200 नहीं की वेंदी, सारे डेली वेजेस मुलाजमीन दी और 25% नहीं दी वेंदी, ते क्लोज नहीं दीते वेंदे पे थल पार्टी का खात्मा किया वने। सवात में डिस्ट्रिक्ट प्राइस रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सवात हामिद अली खान ने की। इजलास में कमेटी मेंबरान शरीक हुए। इजलास में अशिया खुनोनोश की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सवात हामिद अली खान का कहना था कि माही सियाम की आमद है और ऐसे में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जाए और कीमतों के तयन में अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखा जाए। कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि अशिया खुनोनोश की कीमतों में कमी लाकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा और मुनाफे की शरह कम से कम रखी जाए। कमिश्नर पिशावर रियाज खान महसूद ग्राम फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ इन एक्शन। आवाम को सरकारी निरखों पर अशिया खुनोनोश की फराहमी के लिए अज खुद मैदान में निकलने का फैसला कर लिया है। पिशावर डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को महंगाई कंट्रोल करने के लिए बाजारों में मौजूद रहने के अहकामात जारी कर दिए हैं। कराची में वजीर आजम इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए अरकान सिंध असम्बली ने कारवान वफा का आगाज कर दिया। अवाम में पंफलेट तकसीम करने का सिलसिला जारी है। देखते हैं अरशद महमूद की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली की जानिब से वजीर आजम इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए कारवान वफा का आगाज कर दिया गया। इसकी क़यादत हलीम आदिल शेख, बिलाल गफ्फार, शहजाद कुरैशी, खुर्रम शेर जमान समेत दीगर अरकान सिंध असम्बली कर रहे हैं। कारवान मज़ार कायद से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ 3 तरवार पहुंचेगा। कारवान कराची के इलाके ग्रीन लाइन, पटेल पारा, लसबेला, नाजाबाद, बनारस, 5 स्टार चौरंगी, नागल चौरंगी, आयशा मंजिल, लियाकत अली खान चौक, गुलशन चौरंगी, शारे फैसल, मेट्रोपोल से होता हुआ 3 तरवार पहुंचेगा, जहां कायदीन खिताब करेंगे। कारवान वफा के शुरका आवाम से मुलाकात और पंफलेट तकसीम कर रहे हैं।
लोगों का कहना था कि इमरान खान को अवाम ने एतमाद का वोट दिया है। आज बैरूनी इशारों पर सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। जल्द इनकी साजिश को बेनकाब किया। वजीराबाद में अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम 2 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दी। फ्री आई कैंप का एहतमाम खुरम कासमी की जेर निगरानी किया गया। इंतजामी उमूर की फराइज खान आसिफ खान, इसरार अहमद सदीकी और शकील एवान ने अंजाम दिए। शादा वारिस, सैयद जिया अनवर, शबीर अकरम चीमा, शाहिद गजनफर गुराया और चौधरी नासिर भी इस मौके पर मौजूद थे। इलाका मकीनों की जानिब से इस इकदाम को खूब सराहा गया। सियालकोट सिल्वर स्टार कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन मोटरवे इंटरचेंज पर टेस्ट रन सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस स्टेशन से डस्का रोड और सियालकोट मोटरवे पर हादसात में रेस्क्यू रिस्पांस मजीद बेहतर होगा। देखते हैं मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की रिपोर्ट। कम्युनिटी सेफ्टी के लिए रेस्क्यू 1122 का एक और इकदाम। डस्का रोड नज़द राज्यों की मोटरवे इंटरचेंज सिल्वर स्टार फैक्ट्री इंतजामिया के तावन से सिल्वर स्टार कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन पर टेस्ट रन सर्विस का आगाज कर दिया गया। तकरीब में रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबद, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल, सिल्वर स्टार फैक्ट्री के मालिक शेख जहांगीर, CEO बलाल, रेस्क्यूज और फैक्ट्री मैनेजमेंट मौजूद थी। सिल्वर स्टार की बिजनेस पार्टनर जीको फैक्ट्री की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नदीनी सुपरीगल, शेख जहांगीर, रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला ने स्टेशन के टेस्ट रन का बकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबद ने मेहमानों को रेस्क्यू सर्विसेज के हवाले से ब्रीफिंग दी और बताया कि स्टेशन पर एम्बुलेंस और फायर व्हीकल किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगी। मजीद बराह उन्होंने कहा कि स्टेशन के बायस डस्का रोड और मोटरवेज पर होने वाले हादसात में रेस्क्यू रिस्पांस बेहतर होगा। चेयरमैन सिल्वर स्टार शेख जहांगीर ने कहा, रेस्क्यू सर्विस की मिसाल आला है और हम हर किस्म के ताउन के लिए हाजिर हैं। कैमरा टीम के साथ कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक के 10 में पीने के साफ पानी का फुकदान इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में पानी न होने की बाइस इलाका मकीनों को टैंकर माफिया के सामने झुकना पड़ा। इलाका मकीनों का कहना है, हमारे घरों में पानी नहीं आता, इसी वजह से हमें वाटर टैंकर डलवाने पड़ते हैं। हमारी इस मजबूरी का टैंकर माफिया बेहद फायदा उठाते हैं और दुगने दाम वसूल करते हैं। इलाका मकीनों का कहना है, टैंकर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और पानी के मसले को जल्द ठीक करवाया जाए। टैंकर डलवा के 3000 का 5000 का 4000 से काम भी नहीं, 6000 बोलते थे, नहीं दवाते तो टाइम नहीं है हमारे पास। अब क्या करें, पानी नहीं आएगा तो क्या करें, ना खाना पकेगा ना कुछ, क्या करें। सर पानी तो यार आ ही नहीं रहा। 5000 का टैंकर, 6000 रुपये का टैंकर, 8000 रुपये का टैंकर, घरों में पानी नहीं आ रहा जी। हम अपने घर में डलवाते, लेने जाओ कभी 5000, कभी 6000, कभी 10000, इतना टैंकर का। हमारी गुजारिश यही है हुकूमत वक्त से कि पानी का मसला हल किया जाए पूरी तौर पर। गरीब आवाम कहाँ जाए, टैंकर माफिया को ये चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन किया जाए, सक्सेस तक। सर ये कहना है कि पानी यहाँ कराची में, पूरे कराची में नहीं आ रहा, हर घरों में हर जगह पे टैंकर आए हुए हैं, कहीं से पानी मिलता नहीं है और 5000 6000 का टैंकर आ रहा है। तो हमारी यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि कुछ टैंकर वालों को भी कुछ ये किया जाए कि हम पे सस्ता ही करते हैं, बहुत महंगाई हो रही है, गरीब बंदे कहाँ जाए। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ। बहावल नगर में इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सस्ता रमजान बाजार कायम कर दिए गए। बहावल नगर सतलुज पार्क में कायम सस्ता रमजान बाजार में क्या सूरत हाल है, जानते वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे शहबाज सरवर से। जी शहबाज से कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ बहावल नगर रमजान बाजार सस्ता बाजार में जो सतलुज पार्क में कायम कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर और डिप्टी कमिश्नर वसीम साहब के जो ज़ेर निगरानी यहाँ पे जो बाजार कायम किए गए हैं। रमजान बाजार शुरू होने से पहले यहाँ पर आवाम को सहूलियात देने के लिए और रिलीफ देने के लिए यहाँ पर कायम किए गए हैं। यहाँ पर जो आए जो शहरी हैं इनसे हम जान लेते हैं कि वो यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं और इन्हें किन परेशानियों का सामना है या यहाँ पे कितना बेहतरीन सिस्टम है, वो आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। घर के कुछ जरूरती चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे आया था पार्क में, सस्ता रमजान बाजार में आया। मैं लाइन में लेकर जब आगे पहुँचा हूँ
तो मुझे सामने नजर आ रहा कि यहाँ के 3 लोग हैं, एक वो सामने बैठा हुआ, एक वो उधर बैठ खड़ा हुआ, एक और वो बैठा अपने खास जो जानने वाले हैं उनको अंदर से साफ सौदा उठा के दे रहे हैं। मुझे रेट की परवाह नहीं, रेट सब बिल्कुल जो रेट उन्होंने बताया कि उसी रेट पे सौदा मिल रहा है, मगर अफसोस इस बात का कि अपने खास बंदों को नवाजा जा रहा है। मुझे इस चीज का अफसोस है, बाकी रेट का अफसोस है, रोड बिल्कुल सही है। जब मैं लाइन में लग के आगे ले सकता हूँ सौदा, मैं भी पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं जब लाइन में लग के आगे सौदा लेता हूँ तो आगे से मैं उनको इतराज किया तो मुझे बोलते कि अपना तारुफ कराओ। यार तारुफ मेरा ये है कि मैं लाइन में लग के आया हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। जब मैं लाइन में लग के मैं सौदा ले सकता, वो भी लाइन में लग के सौदा ले सकते हैं। जैसा हमें मिले वैसा उन्हें मिले, ये अपने अपने खास बंदों को नवाज रहे हैं। इनके एक वो सामने 2-3 बंदे बैठे हुए हैं, ये कहते हैं हमारा अपना मामला है, आप बीच में दखलंदाजी ना करें। सुना शहरी की आवाज़, इनका कहना था कि मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, जैसे मैं लाइन में लगकर प्रोसेस मुकम्मल करके यहाँ तक पहुँचता हूँ, इसी तरह से दूसरे लोगों को भी ऐसे ही आना चाहिए। ये यहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो इन्होंने यहाँ पे जो वर्कर खड़े किए हैं, उन्होंने अपने ख़ास लोगों को नवाजने के लिए यहाँ पर वो बैठे हैं, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, उन्हें साइड पे ले जाकर VIP सौदे से नवाजा जाता है। जब एक आम शहरी जिनका पूरा हक है इधर, वो भी पाकिस्तानी शहरी, उनके बावजूद वो पूरा प्रोसेस करते हैं, लाइन में लगते हैं, उसके बावजूद उसको जगह वहाँ पर चीज़ ठीक नहीं मुहैया की जाती। मैं यहाँ पर के इंतजामिया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर साहब, डिप्टी कमिश्नर वसीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर अभी रमज़ान बाजार अभी शुरू नहीं हुआ और लोगों को अभी से मिसाइल का जो है सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन के साथ शहबाज सरवर, कोहिनूर, बहावल। हाला में भी अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई से सताई आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। देखते हैं अमजद राजपूत की रिपोर्ट। हाला शहर में रमजान मुबारक की आमद से कबल ही सब्जियां, दूध, दही, आयल, फ्रूट, गोश्त और अशिया खुर्दोनोश समेत दीगर जरूरतें जिंदगी की चीजें गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। हुकूमत वक्त ने हर चीज महंगी करके आवाम की चीखें निकाल दी। हालांकि आवाम ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा कि रमजान मुबारक आ रहा है तो हमारे मुसलमान भाई एक और बहुत बड़ा गुनाह करते हैं कि वो अपने हाथों से चीज़ों की कीमतों को भी बढ़ा देते हैं। हालांकि कई ममालिक में रमजान जैसे शुरू होता है वो कीमतों को घटा देते हैं। हिंदुस्तान में और ममालिक, बहुत सारे ममालिक हैं कि जो मुसलमानों के लिए पैकेज देते हैं रमजान का, कि रमजान का पैकेज है मुसलमानों के लिए, लेकिन हमारे मुसलमान भाई रमजान का पैकेज महंगाई की सूरत में देते हैं। तो इस चीज पर ख्याल करने की जरूरत है। रमजान का महीना आ रहा है, तेल की कीमतें, खाने का तेल इतना महंगा हो चुका है कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। अब सोच रहे हैं कि इफ्तार में पकौड़े बनाए, समोसे बनाए, फ्रूट लाए, तो ये सारी चीजें जो है यानी ये गरीब आदमी की पहुंच से दूर की जा चुकी है। वो रमजान को अपना सीजन समझकर डबल अपने जो भी उनकी कीमतें हैं उसमें इजाफा कर देते हैं। जिससे पूछो वो कहता है ये तो सीजन है, ये तो सीजन है। दर्जी का भी सीजन है, फ्रूट वाले का भी सीजन है, पुलिस वाले का भी सीजन है। जिसको देखो सीजन के पीछे और कमाई के पीछे लगा हुआ है। तो मेरी सजावल में भी अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई से आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। देखते हैं गुलशेर की रिपोर्ट। माह सयाम की आमद है और सिंध के दीगर शहरों की तरह जिला सजावल में भी बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की नींदें उड़ा दी हैं। अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरा इजाफा, शहरी परेशान। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई के बायस आटा, दाल, चीनी, घी, सब्जियां और फ्रूट समेत दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों को भी पर लग गए। ये गुजारिश करते हैं कि रमजान का महीना आ रहा है, काफ़ी महंगाई है और लोग जो है वो काफ़ी चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। जैसे कि रमज़ान के महीने में फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं या जो मुर्गी है, गोश्त है, उन पे रिलीफ दिया जाए। अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो भी मार्केट कमेटी वाले ऐसे रेट निकाले कि लोगों को सही दाम में मिल सके और वो अपनी ज़िंदगी के मामूल के मुताबिक कुछ चीज़ें ले सके। कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है इस गवर्नमेंट से, और उससे ऊपर रमज़ान का महीना आ रहा है, कुछ भी चीज़ों का जो है रिलीफ नहीं मिल रहा है आवाम को। हम खुदारा गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि आप रोज़मर्रा की तरह अपने रेट लिस्टें दुकान पे जो है मुआशी चेक करें, जो उनके दुकानदारों की लिस्ट चेक करें। जो मजबूरी है लेना पड़ता है तो 300-400 रुपये ये 100 किलो, और इतनी बड़ी महंगाई
क्या करें। का मजीद कहना था कि जिला सजावल में कायम प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने के बायस मुनाफाखोरों ने अपने मनपसंद रेट मुकर्रर कर दिए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि जिला सजावल में बढ़ती हुई महंगाई की रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दाम। रमजानुल मुबारक में हुकूमत पंजाब की तरफ से खुसूसी रमजान पैकेज में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फालिया शहर में रमजान बाजार का इनेकाद। रमजान बाजार में अशिया खुरोनोश के 15 से 20 स्टॉल्स लगाए गए हैं। रमजान बाजारों का मकसद आवाम को सस्ती और म्यारी अशिया खुरोनोश की फराहमी को यकीनी बनाना है। रमजानुल मुबारक में हुकूमत पंजाब की स्पेशल रमजान पैकेज हिदायत पर अमल दरामद करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद इरफान हंजरा और चीफ ऑफिसर चौधरी इरफान गोंदल की ज़ेरे निगरानी सस्ता रमजान बाजार लगा दिया गया है, जिसमें गोश्त, सब्जी, आटे, चीनी, चिकन, मेवाजात और यूटिलिटी स्टोर समेत सब्सिडी दी जाने वाली अशिया जरूरिया के 15 से 20 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें रमजान बाजार खरीदारी के लिए आने वालों को आम बाजार की निस्बत चीनी, घी, आटा, दालें, गोश्त, सब्जियां और फल कम निरखों पर मिल रहे हैं, जिसकी खरीदारी के लिए शहरी रुक कर रहे हैं। रमजान बाजार में जहां बाजार की निस्बत अशिया जरूरिया की मुनासबत निरखों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है, वहीं इन चीजों के म्यार और मिकदार के साथ हुकूमती निरखों पर दस्तयाबी की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद इरफान हंजरा ने रमजान बाजार में शहरियों को मुहैया की जाने वाली सर्विसेज का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद इरफान हंजरा ने रमजान बाजार में अशिया खुरोनोश के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं कि एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिरीकोट डिप्टी कमिश्नर हरिपुर मोगी सनाउल्लाह की खुसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसन सब डिवीजन गाजी में कायम रमजान सस्ता बाजार का दौरा, मुख्तलिफ दुकानों में अशिया चेक की गई और मुतलका अमले को जरूरी हिदायत जारी की गई। मजीद जानते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मशवानी की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर में सनाउल्लाह की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसन रोजाना की बुनियादों पर रमजान बाजार की मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि अवाम उन्नास को सब डिवीजन गाजी में कायम रमजान सस्ता बाजार में रियायती और मियारी एशिया मुयसर की जा सके। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसन ने सब डिवीजन गाजी में कायम रमजान सस्ता बाजार का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल चेक किए और मुतलका अमले को जरूरी हिदायत जारी की और मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने कहा कि रमजान सस्ता बाजार आप लोगों के लिए लगाया गया। इस बाजार में कम कीमतों पर एशिया फरोख्त किया जाएगा और किसी ने हुकूमत अहकामात के मानने से इनकार किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सराय नौरंग लक्की मरवत में हुसैनी इंटरनेशनल नामी तंजीम के जेरे एहतमाम सैकड़ों मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया गया। ये तकसीम हुसैनी इंटरनेशनल ने नौमुंतखब तहसील नौरंग मेयर अजीजुल्लाह खान की दरख्वास्त पर किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं लक्की मरवत से शरीफुल्लाह की रिपोर्ट में। सराय नौरंग लक्की मरवत में हसने इंटरनेशनल नामी तंजीम के जेर एहतमाम सैकड़ों मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया गया। ये तकसीम हसने इंटरनेशनल ने नौमुंतखब तहसील नवरंग मेयर हाजी अजीजुल्लाह मरवत की दरख्वास्त पर किया। स्कूल ग्राउंड सराय नवरंग में मुनक़िदा तकरीब में हसने इंटरनेशनल के अबू बकर अरसोन और साविश ने गरीब, नादार और मुतवसत तबके के अफराद में 350 फूड पैकेजेस तकसीम किए, जिनमें आटा, घी, चीनी, दालें और चाय की पत्ती समेत दीगर खुर्दनोश के अशिया शामिल थे। इस मौके पर अबू बकर अरसोन और साविश और तहसील मेयर नवरंग हाजी अजीजुल्लाह मरवत ने खिताब करते हुए कहा कि हसने इंटरनेशनल एक खिदमत खल्क का इदारा है और ये इदारा गरीब, नादार और मुतवसत तबके के लोगों की तदरसी और माशरे में दीगर अफराद के साथ बराबर करने की जद्दोजहद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि फूड पैकेजेस का सिलसिला मजीद जारी रखेंगे और रमज़ान अल मुबारक के बबारकत महीने में भी आवाम को खुर्दनोश की अशिया आवाम की दहलीज तक पहुँचाने
में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि फूड पैकेजेस समेत तहसील नवरंग में साफ पानी और कफालत यतीमा के प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। साफ पानी के मंसूबों से हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे और कफालत यतीमा लकी मरवत के सैकड़ों बच्चों को मयारी तालीम तक रसाई हासिल होगी। कैमरामैन सफीरुल्लाह के रेनाला खुर्द रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने में सस्ता रमजान बाजार और नमाज तरावी और जुमे के वक्त तमाम मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। डीएसपी रेनाला सर्कल जफर इकबाल डोगर मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी इमरान रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नमाज तरावी और जुम्मतुल मुबारक के वक़्त पंजाब पुलिस के अहलकार तमाम मसाजिद के बाहर मौजूद होंगे। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। डीएसपी रेनाला सर्कल जनाब जफ़र इकबाल डोगर की अलखिदमत वेलफेयर कौंसिल रेनाला खुद के ऑफिस आमद जफ़र इकबाल डोगर का फूलों के गुलदस्तों से पुरतकल्लफ इस्तकबाल किया गया। डीएसपी रेनाला सर्कल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बाबरकतों का महीना है। इस महीने में हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नमाज तरावी और जुम्मतुल मुबारक के वक़्त तमाम मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर सैयद नदीम मकसूद जाफरी सरपरस्त आला खिदमत वेलफेयर कौंसिल सीनियर सहाफ़ी सज्जाद खालिक लखवी चौधरी इमरान खुशी व दीगर अफराद भी मौजूद थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पंजाब पुलिस के अहलकार हमा वक्त तैयार रहते हैं। कैमरा रिपोर्टिंग टीम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कहा है कि रमजान मुबारक खैर बरकत का महीना है और माह मुबारक के दौरान लोगों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम बुरुए कार लाए गए हैं। बहावलपुर से देखते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कहा कि रमजान मुबारक खैर बरकत का महीना और माह मुबारक के दौरान लोगों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम बुरुए कार लाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से शहर में लगाए जाने वाले सस्ते रमजान बाजारों और मसाजिद में सफाई सुथराई पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी ताकि शहरी साफ सुथरे माहौल में रमजान मुबारक की बरकतों से फैज़ याब हो सके। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, जी रमज़ान बाजार के लिए बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने स्पेशल ड्यूटी रोस्टर इशू कर दी है और बहावलपुर शहर के 3 रमज़ान बाजार और अहमदपुर शहर का 1, इन तमाम जगहों पे कंपनी की सर्विसेज मुहैया होंगी। बहावलपुर में डबल शिफ्ट में काम होगा तमाम रमज़ान बाजार में। हमारे वर्कर वहाँ पे लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए मौजूद होंगे और इसके अलावा रमज़ान में मसाजिद को जाने वाले तमाम रास्ते उन पर भी स्पेशल फोकस होगा और शाम को सेकंड शिफ्ट में भी, क्योंकि रात को लोगों ने तरावी पे जाना होता है, मसाजिद को जाने वाले तमाम रास्तों का ख्याल किया जाएगा। वहाँ पे कोई गंदगी का इम्कान कम से कम होगा ताकि लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम हो सके। जी बिल्कुल, इस महीने में जो कि बरकतों वाला महीना है इसमें सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि आपको एक पाकीज़ा माहौल मिल सके। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर सिविल सोसाइटी और वकला का एहतजाज। अशिया खुरोनोश की महंगे दामों फरोख्तगी पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे आजम भट्ट से। जी आजम, आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर उम्मा लायर फोरम और सिविल सोसाइटी की जानिब से रमजानुल मुबारक के तकद्दुस को बहाल रखा जाए और सिगरेट नोशी और दीगर जो दुकानें खुली होती हैं उसको बंद करवाने के लिए अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उम्मा लायर फोरम के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और हुकूमत पंजाब को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी क्या नाम है आपका? राव ताहिर शकील मेरा नाम है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि खुदारा रमज़ान के तकद्दुस को पामाल करने से बचाया जाए, होने से बचाया जाए, क्योंकि हमारे अब आम हो गया है कि सड़कों पर देखने को मिलता है लोग बेफिक्री से सिगरेट पी रहे हैं। इम्तनाए रमज़ान ऑर्डिनेंस मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नज़र नहीं आती और ये 84 से ये लॉ मौजूद है
और पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती थी, हम छोटे देखा करते थे कि दुकानों के आगे अगर कहीं है स्टेशंस पर तो वहाँ पर पर्दे लगे हुआ करते, उसके अलावा कहीं कोई खाता पीता कुछ बेचता नज़र नहीं आता था। लेकिन अब उसका तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है और किसी के कान पर जूं नहीं रेखती। हमारी हुकूमतें खामोश हैं इस मौजू पर और उन्हें चाहिए कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन कराएं और रमज़ान के तकद्दुस का एहसास किया जाए। बिल्कुल ऐसे रमज़ान के तकद्दुस को बहाल रखा जाए और उम्मा लायर फोरम की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा था। अब सिविल सोसाइटी के जो अहदेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? अली इमरान शाहीन मेरा नाम है जी, पाक सिविल सोसाइटी से मेरा ताल्लुक़ है और आज हम यहाँ पे इस बात के लिए मुतालबा कर रहे हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक अभी हमारे ऊपर साया फगन होने वाला है, अल्लाह की रहमतों का महीना आने वाला है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ भी दे और जो लोग इस महीने के अंदर लूट मार करते हैं और महंगाई करके मसनूई गलत चीज़ों की पैदा करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। आप ज़रा देखिए कि जब क्रिसमस आती है तो यूरोप के अंदर और जो गैर मुस्लिमों के मुल्क हैं वहाँ पर हर चीज़ को हाफ रेट पर बेचा जाता है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है और वहाँ पर जो है ना इस तरह का नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में होता है। तो यहाँ पे रमज़ानुल मुबारक आता है तो हर एक चीज़ का रेट दुगना हो जाता है, लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके लोगों को मज़ीद परेशान करते हैं, बजाय इसके कि रहमतों का महीना है वो रहमतें हासिल करें, वो उल्टा लानतें हासिल करते हैं। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए और जितने कारोबारी और लोग हैं, जो ताजर लोग हैं, उनसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो इस महीने को रहमतों का महीना बनाए। सारा साल वो कमाई करते हैं तो जितनी वो अल्लाह के साथ अपनी ताल्लुकदारी को मजबूत करेंगे, लोगों के लिए रिलीफ देंगे तो अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर रहमत ज़्यादा आएगी, उनके माल में बरकत होगी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ से भी इनाम ज़्यादा मिलेगा। तो इस महीने को लूट मार का महीना ना बनाएं बल्कि इसको अल्लाह की तरफ से रहमतें हासिल करने का, जन्नत हासिल करने का जरिया बनाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने सुना कि इस महीने को लूट मार का महीना ना बनाया जाए बल्कि जन्नतें हासिल की जाएं। सिविल सोसाइटी की तरफ से पंजाब हुकूमत को भी पैगाम है और जो एशिया खुर्दनोश की चीज़ें रिकॉर्ड महंगी करते हैं और लोगों की पहुंच से दूर होती हैं, रोज़ादार जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चीज़ें ब्लैक हो जाती हैं, चीज़ों का मिलना मुश्किल हो जाता है, जहाँ से मिलती हैं और रिकॉर्ड रेट होते हैं। तो सिविल सोसाइटी का ये पैगाम हुकूमत पंजाब को भी है और जो ऐसी एशिया खुर्दनोश की चीज़ें महंगी कर लाहौर के सरकारी अस्पतालों का वेस्ट टिकाने लगाने के बजाय प्लास्टिक कंपनीज को फरोख्त करने के हवाले से केस की समाअत सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर LWMC, डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट, DIG इन्वेस्टिगेशन और दीगर को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर आजम भट्ट से। जी आजम भट्ट, आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल ऐसे है, लाहौर हाईकोर्ट में इंतहाई अहम रिट जो है वो दायर हुई है। दरखास्त गुजार ने रिट में मौक़िफ़ इख्तियार किया है, राणा मोहम्मद सिकंदर एडवोकेट ने, कि जो लाहौर के सरकारी अस्पतालों का ट्रिपें और इंजेक्शन और दूसरा वेस्ट है वो सारा प्राइवेट ठेकेदार जो है वो बाहर कंपनियों को बेचते हैं, उसका क्रश किया जाता है, उसका दाना बनता है और उसके बाद फिर जो बच्चों के फीडर, निपल और दीगर प्लास्टिक की चीजें जो है वो तैयार की जाती है। यहाँ तक प्लास्टिक के शॉपर बैग जो बाजारों में बिकते हैं ये भी उस दाने के जो बनाए जाते हैं, जिस पे लाहौर हाईकोर्ट ने बाकायदा तौर पर इस केस की समाअत की और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का कहना था कि मफाद आमा का केस है, इसको हम जो है ब्रीक नीति से देखेंगे और इस पे बाकायदा तौर पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने सेक्रेटरी हेल्थ को, LWMC को और दीगर महकमों को जो आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है और लाहौर के सरकारी अस्पतालों से जो वेस्ट जाता है इसकी तमाम तफसीलात भी जो है अदालत ने मंगवा ली है। अब आइंदा समाअत के ऊपर जो है मुकम्मल हकाइक के साथ जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो अदालत को रूबरू जो है वो सारी सूरत हाल बताएंगे। रिट में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। आजम भट्ट तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में IG पंजाब राव सरदार अली खान की ज़ेरे सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में RPOs और DPOs वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। इजलास में जुराइम की रोकथाम और अमन अमान के क़याम के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया है। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मजहबी मकामात की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी, हवाई फायरिंग और मनशियात के मकरूह धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाई जाए, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, इश्तिहारी मुजरमान और अदालती मफरूरान की गिरफ्तारी में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरान पेशी और हवालात से मुलजिमान के फरार होने के वाकयात पर जिम्मेदारों के खिलाफ
सख्त एक्शन लिया जाए। आईजी पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला समेत बड़े शहरों में जुराइम की रोकथाम के हवाले से खुसूसी टास्क सौंपे। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। लाहौर में सीईओ LWMC राफे हैदर की हिदायत पर अमल दरामद 60 से ज्यादा जामे मसाजिद की मैकेनिकल वॉशिंग का टास्क मुकम्मल कर लिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं लाहौर से। लाहौर में सीईओ LWMC राफे हैदर की हिदायत पर अमल दरामद 60 से ज्यादा जामे मसाजिद की मैकेनिकल वॉशिंग का टास्क मुकम्मल कर लिया है। आपको खबर दे रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से। सीईओ LWMC राफे हैदर की हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। 60 से ज्यादा जामे मसाजिद की मैकेनिकल वॉशिंग का टास्क मुकम्मल कर लिया है। आपको खबर दे रहे हैं लाहौर से, जहां सीईओ LWMC राफे हैदर की हिदायत पर अमल दरामद 60 से ज्यादा जामे मसाजिद की मैकेनिकल वॉशिंग का टास्क मुकम्मल कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी, सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी राफे हैदर की हिदायत की रोशनी में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल जामिया मसाजिद की वॉशिंग की सिलसिला जारी है। प्लानिंग के मुताबिक 175 मसाजिद की मैकेनिकल वॉशिंग की जाएगी, जिसमें से 60 से ज्यादा जामिया मसाजिद की मैकेनिकल वॉशिंग का टास्क मुकम्मल कर लिया गया। रावी टाउन, अजीज भट्टी टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन और गुलबर्ग टाउन की जामिया मसाजिद में खुसूसी वॉशिंग जारी है। प्लान के मुताबिक गुलबर्ग 25, लश्कर टाउन 30, सातागंज बख्श टाउन 30, अल्लामा इकबाल टाउन 10, समनाबाद टाउन की जामिया 10 मस्जिद वॉशिंग माह रमजान से कबल मुकम्मल की जाएगी। रावी टाउन की 25, शालीमार टाउन की 14, बाटा टाउन 14 और अजीज भट्टी टाउन में 17 मसाजिद की वॉशिंग की जाएगी। राफे हैदर का कहना है कि जामिया मसाजिद की मैकेनिकल वॉशिंग का अमल रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में दोबारा दोहराया जाएगा। रमजान बाजारों और कदाफी स्टेडियम के गिर्द भी मैकेनिकल वॉशिंग का अमल जारी है। जी कामरान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मारूफ दानश्वर और स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज हुसैन मिर्जा को बिछड़े 12 बरस बीत गए। अदलिया बचाव कमेटी के ज़ेरे एहतमाम लाहौर हाई कोर्ट के डेमोक्रेटिक लॉन में बरसी की तकरीब का एहतमाम किया गया। देखते हैं आजम भट्ट की रिपोर्ट। लाहौर अदलिया बचाव कमेटी के ज़ेरे एहतमाम लाहौर हाई कोर्ट के डेमोक्रेटिक लॉन में मारूफ दानश्वर स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज हुसैन मिर्जा की 12वीं बरसी की तकरीब हुई, जिसकी सदारत मरहूम के फर्जंद आमिर मिर्जा ने की। जबकि इस तकरीब में सैयद मंसूर गिलानी, शेख अब्दुल मजीद एडवोकेट, ताहिर कसूरी एडवोकेट, साबिक नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार राव खुर्रम मुमताज एडवोकेट, शहबाज रशीद कुरैशी एडवोकेट, इम्तियाज रशीद कुरैशी और चेयरमैन भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान और दीगर ने डॉक्टर सरफराज हुसैन मिर्जा की मुल्क कौम की इनकी खदमात के इतराफ़ करते हुए इन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मरहूम ने पाक इंडिया रिलेशनशिप, तहरीक पाकिस्तान, तनाज़ा कश्मीर, करारदाद, मकासद, तारीख ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तारीख पाकिस्तान मुस्लिम लीग, खवातीन का करदार, कायदा-ए-आज़म मुस्लिम ट्रस्ट, मादर मिल्लत की सियासी और समाजी सरगर्मियाँ, पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन और तारीख के मौज़ूआत पर 45 के करीब किताबें लिखी। डॉक्टर सरफराज हुसैन मिर्जा का शुमार नवाए वक्त के वज़ीर मजीब निज़ामी के करीबी साथियों में होता था। मरहूम नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन के डायरेक्टर रिसर्च भी रहे। तकरीब के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज हुसैन मरहूम के लिए दुआएं। गुजरांवाला में भी इंतजामिया की जानिब से सस्ता रमजान बाजार कायम कर दिया गया, जहां कम कीमत पर मियारी अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद से। जी तौसीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है रमजान बाजार का जो है वो आगाज कर दिया गया है और यहाँ रमजान बाजार की दो खास चीजें आपको बताते चले। एक तो यहाँ पे रमजान बाजार में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो है बड़े बड़े जो बोर्ड हैं, पैनाफ्लेक्स हैं, उन पे जो है
ना तो वजीर आला का नाम लिखा गया है, क्योंकि खुद जो है हुकूमत इस वक्त तजब्जुब का शिकार है कि नए वजीर आला कौन होगा वो उसी का नाम लिखेंगे। और दूसरी खास चीज आपको ये बताते चले कि हमारे कौमी शनाख्ती कार्ड की बड़ी अहमियत जो है इसे हुकूमत ने दी है, वो ये कि आपने अगर 1 किलो चीनी खरीदनी है तो आपका ID कार्ड अपने साथ, कौमी शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखना होगा। अगर आपने 10 किलो वाला आटा जो है वो खरीद करना है तो रमजान बाजार से आपने एक ID कार्ड का जो है वो दिखा के आपको एक जो है मिलेगा। और ये इस वक्त हम गवर्नमेंट का स्टॉल है, यहाँ पर खड़े हैं। ये मेरे पीछे अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो आपको नजर आएगा, यहाँ पर जो है ये दाल चना की जो है 101 रुपए किलो जो है वो दस्तयाब है। उसके साथ केला है, सेब और 10 किस्म के जो है फ्रूट है और खजूर है। बड़ी कम चीजें जो है वो यहाँ पर दस्तयाब हैं, लेकिन वो उनके रेट जो है मार्केट से यहीं पे प्राइवेट स्टॉल भी लगे हैं, जहां पर जो है यही दाल चना जो है वो 148 रुपए पर केजी के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट स्टॉल से आप सिर्फ 1 केजी ही चीज जो है वो खरीद सकते हैं। कल इसके मुतबादल आप दूसरी चीजें खरीद सकते हैं, जो मिनरल वाटर या आप कह लें उसको पेप्सी वगैरह, स्प्राइट और जो कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी हैं वो जो है मार्केट से जो है 10 रुपए जो है वो कम रेट पर यहाँ पर दस्तयाब हैं। ओवरऑल जो है वो शहरी हमारी बात हुई है, वो कहना है कि मेंटली तौर पर हम सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ पर चीजें जो है वो मार्केट से 10 रुपए कम, और सरकारी जो स्टॉल है वहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, जैसे दाल चना है वो 50 रुपए 20 केजी के हिसाब से कम जो है मार्केट में दस्तयाब है। ओवरऑल जो है वो शहरी बड़े खुश हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है रमजान बाजार लगाकर रमजान का बड़ा शानदार तोहफा दिया गया है। थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस की कार्रवाई मुनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने बैनुल सूबाई मुनशियात स्मगलर अहमद ज़ेब और शकील को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से करोड़ों रुपए मालियत की 125 किलोग्राम चर्स और 14 किलोग्राम अफयून बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुनशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली कार को भी कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमान सूबा KPK के रहायशी हैं और पंजाब के मुख्तलिफ इजला में मुनशियात स्मगलिंग का मकरूर धंधा करते थे। DPO हाफिजाबाद का कहना है गिरफ्तार मुलजिमान से सहूलतकारों और सप्लायर से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी है। मुनशियात फरोशी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। रहीम यार खान में थाना आबादपुर की हुदूद में पुलिस मुकाबला, अल्लाह बचाया नामी मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा नजीर अहमद उर्फ चीमा नामी शख्स को अगवा किया था और पुलिस टीम पर अपने साथियों के हमरा फायरिंग की थी। फायरिंग के तबादले में पुलिस ने मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के साथियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। फोटाबाज में नादरा ऑफिस के बाहर नौसरबाज आवाम के हत्थे चढ़ गया। नौसरबाज ID कार्ड बनवाने के लिए आई हुई खवातीन से पैसे और जरूरी दस्तावेजात लेकर फरार हो जाता था। फोटाबाज के नवाही गांव 272 HR से खवातीन को शदीद परेशानी का सामना था। शहरियों ने नौसरबाज को रंगे हाथों पकड़कर खूब दुर्गत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया। लाड़काना में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान। रहनुमा पीपल्स पार्टी असद खरल की क़यादत में शहरियों ने बाकरानी टावर रोड पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने टायर नजरे आतिश करके सेपको इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर असद खरल, एजाज खोखर, रुस्तम शेख और दीगर ने कहा कि सेपको ने UC 12 में गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ाकर आवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। बढ़ती हुई गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग के बाद शदीद परेशानी का सामना है। कोट गुलाम मोहम्मद में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान हैं। बढ़ती हुई गर्मी में बिजली ना होने के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवाही इलाके ट्रांसफार्मर भी गुज़श्ता कई दिन से खराब है, जिसे अब तक तब्दील नहीं किया गया। शहरियों ने आला अफसरान से नोटिस लेने की अपील कर दी है।
बहावलपुर में रेस्क्यू ऑफिसर बाकर हुसैन ने गुज़श्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट से आगाह किया। कंट्रोल रूम ने मार्च 19,646 कॉल्स मौसूल की। देखते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट। इमरजेंसी ऑफिसर बहावलपुर बाकर हुसैन ने कहा कि पंजाब एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 बहावलपुर ने गुज़श्ता माह मार्च 2022 में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी बताते हुए कहा कि बहावलपुर कंट्रोल रूम ने मार्च में 19,646 फोन कॉल मौसूल की, जिनमें से 6,103 कॉल इमरजेंसी से मुतल्लिक थी। उन पर जाए हुक्म पर पहुंचने का औसत टाइम 8 मिनट रहा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने जो मार्च के मंथ में इमरजेंसी डील की हैं वो तकरीबन 6,000 के करीब हैं। उसमें से 4,000 हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी थी और रिमेनिंग जो हमारे पास 1,200 के करीब है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जो हमारे लास्ट मंथ में ज़्यादातर मेडिकल इमरजेंसीज और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हुई हैं वो 115 के करीब हुई हैं, और इसके साथ साथ जो फायर के इंसिडेंट थे वो हमने डील किए हैं। और जो अब हमें जो चैलेंज आ रहा है वो इसके फायर इंसिडेंट्स का ही आ रहा है कि वो लोगों से ये गुजारिश भी करनी है कि जो हमारे पास गंदम की कटाई हो रही है उसकी बाकियात होती हैं, उसमें लोग उसको आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से नज़दीक खड़ी फसलों को भी आग लग जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान होता है। तो इससे लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी थी कि ये कानून के खिलाफ भी है और इस पर सज़ा भी है कि आप जो फसल है उसकी बाकियात को आग लगाते हैं तो इसको काइंडली ना करें, ताकि हम चीज़ों को सेव कर सकें और लोगों का माली नुकसान भी कम हो। खुरम साहब के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।